اس گورنر ہاؤس میں 2 سالوں میں جو کچھ آپ نے میرے بارے میں بتایا، ہم نے وہ سارے انیشیٹوز لیے، جس میں گورنمنٹ آف سندھ یا گورنر ہاؤس کی کوئی ایگزیکٹو پاور یا فائنینشیل پاور نہیں تھی، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کچھ اختیار، اس لیے کہ لوگوں کو کام چاہیے۔ یہ میرا نوجوان جو ٹیلنٹ سے بھرا پڑا ہے، ٹیلنٹڈ ہے، ہوگا، لیکن آپ کو اب فکر کرنے کی نہیں ہے۔ آئی ٹی سی کے 5 سے 10 سنوائی ہے، گھنٹی بجا کر دستک دے کر سننے والا، دکھ اور درد کو بانٹنے والا یہ گورنر ہاؤس کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہے۔ ہمارے سربراہی میں سے منیر صاحب کی سربراہی میں اگر ایک بات پر 24 گھنٹے ان کے لیے دعا گو بھی ہوں اور کھڑا ہوں، پاکستان کی معاشی استحکام میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور دل سے چاہتے ہیں کہ پاکستان کا یہ نوجوان، پاکستان کا یہ مستقبل والا نوجوان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں، اگر ہم سب سمجھ کر اس بات پر یقین کر لیں کہ پاکستان میں اچھا ہونے والا ہے، جو کچھ اچھا ہوگا اس کے ثمرات نیچے تک جائیں گے، آپ تک پہنچیں گے۔ ایک میرا نوجوان جب اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا، اس دن مجھے خوشی ہوگی کہ ہم نے کچھ کیا ہے۔ یہ جو ہم 24 گھنٹے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ایک دن پرائم منسٹر سعودی عرب میں ہے، ایک دن ہمارے آرمی چیف چائنا میں ہے، کبھی سعودیہ میں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی سبھی دیکھتے ہیں کہ کام کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کو بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ آخری ہی موقع ہے، اس کے بعد شاید پھر موقع بھی ہمیں نہ مل سکے۔ آج ترقی کی ریس میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ہمیں اس بات کو ماننا پڑے گا، لیکن ہم نے ہار نہیں ماننی، ہم ہارے نہیں ہیں، کیونکہ یہ وہ قوم ہی نہیں ہے جو ہار جائے۔ ہم کھڑے رہیں گے، ہم لڑیں گے، ہم ایز اے قوم پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے، کیونکہ ہمیں اگر قدر کرنی ہے اپنی اس زمین کی، اپنے اس ملک کی، تو ہمیں پھر فلسطین کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہمیں قدر کرنی ہے اپنے اس وطن کی، تو ہمیں عراق کو دیکھنا پڑے گا، لبنان کو دیکھنا پڑے گا، شام کو دیکھنا پڑے گا۔ پھر ہم یہ نہیں سوچیں کہ صرف پیسہ ہی سب کچھ ہوگا، روزگار ہی سب کچھ ہے۔ وطن پورا کمپلیٹ، جس میں ہم اپنی ماؤں بہنوں اور اپنی غیرت اور خود مختاری کے ساتھ جیے، جہاں کوئی دشمن ملک اور قوت ہمیں میلی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے، تو ہمیں ایک مضبوط پاکستان پہلے چاہیے، ہمیں مضبوط سرحدیں چاہیے، اس کے بعد پھر روزگار شروع ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہم ایک مضبوط ملک ہیں، ایک ایٹمی طاقت ملک ہے۔ ہمیں صرف اپنے اندر اپنے ملک کے لیے ایک جذبہ پیدا کرنا ہے، ہمیں جاگنا ہے، ہم مایوس نہ ہوں،
मायूसी कुफ्र है, लेकिन हमें यह भी एहसास करना है कि ये हमारा है, हमें किसी को इसे खाने नहीं देना है, हमें इसे लुटता हुआ नहीं देखना है, हमें इसे जाया होते हुए नहीं देखना, हमें इसे बदनाम होते हुए नहीं देखना, चाहे सोशल मीडिया पर हम खुद ही अपने मुल्क की बजा रहे हो। कोई इंडियन मुझे इंडिया में नजर नहीं आता जो अपने मुल्क के खिलाफ बात करे। आप इस मुल्क के सिपाही हैं और आज आपके हाथ में जो हथियार है आपका टेलीफोन है। आए अपने मुल्क को अपने हाथ से ताकतवर बनाते हैं, करते हैं पाकिस्तान की तारीफें, फिर देखें लोग कैसे हमारी तरफ आते हैं। हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। हमें दुश्मन ताकतें, कुव्वतें उस ऐसे बयानिए के पीछे लगा रही हैं जिससे सिर्फ हमारी ही बुराई हमारे लिए हो रही है। आज अगर दुनिया में 10 साल पहले ओवरसीज पाकिस्तानीज अगर किसी मुल्क में नजर आते थे आवाज उठाते हुए, खड़े होकर चिल्लाते हुए, तो वो कश्मीर इशू पे आवाज उठाते थे, वो भारत के मजालिम के खिलाफ आवाज उठाते थे, वो यूएनओ में पाकिस्तान के खिलाफ जो सैंक्शंस होती थी उसके खिलाफ आवाज उठाते थे। लेकिन दुश्मन की कामयाबी देखें कि आज हमारे ही पाकिस्तानी हमारे ही लोगों के खिलाफ, हमारे ही वतन के खिलाफ, हमारी ही फोर्सेस के खिलाफ, हमारे ही सियासतदानों के खिलाफ दूसरे मुल्कों में मुजाहरे करते हुए नजर आते हैं और भारत इस पर हंस रहा होता है कि क्या काम पर हमने इनको लगाया है कि अपने ही लोगों को सरेआम रुसवा कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही, पाकिस्तान के अंदर तरक्की क्यों नहीं हो रही। तो मैं समझता हूं कि जो नौजवान हैं, मेरे भाई बहन, इनको सोचना होगा, मेरे सहाफी भाइयों को सोचना होगा जो यहां बैठे हैं कि क्या शॉर्ट टर्म फौरी रिएक्शन देना है, रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है। देखिए, जो दुश्मन चाहता है वो तो सामने है, क्या हम बहैसियत पाकिस्तानी क्या चाहते हैं। मैं समझता हूं हम चाहते हैं कि जिस शहर में हम रह रहे हों, जिस मोहल्ले में हम रह रहे हों, वहां बिजली, पानी, गैस, सेहत की सहूलियात, तालीम की सहूलियात, ये सब मैसर हों, रोजगार अच्छा मिले, हम कारोबारी हैं तो कारोबार अच्छा हो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, स्ट्रीट क्राइम ना हो। यही है ना मुल्क की बात। तो इस पर तो कोई बात नहीं हो रही। बात तो यहां सोशल मीडिया पर जाती हो रही है। आप किसी के किरदार को हीरो बना रहे हैं और किसी को विलन बना रहे हैं। यह काम तो नहीं है। आपका काम है, अगर कोई काम मैं गलत कर रहा हूं तो मेरे काम पर तनकीद करें, उस तनकीद को तसी की सूरत दें, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है वो राय दें। आप ऐसी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं जिसका नैरेटिव पहले से उसका बयानिया बना के डाला जाता है, आप सिर्फ उसका हिस्सा बन रहे हैं और उससे हासिल और उसूल कुछ नहीं हो रहा। पाकिस्तान में तरक्की के अमल को रोकने में किरदार अदा ना करें, बल्कि पाकिस्तान में तरक्की जो होने जा रही है उसको सोचें, उसको समझें। जो शंघाई समिट इस्लामाबाद में हुआ उसकी अहमियत को समझें। अगर रशिया का प्राइम मिनिस्टर अपने 200 लोगों के डेलीगेशन को लेकर 10 दिन इस्लामाबाद में बैठा है, उसकी अहमियत को समझें। पाकिस्तान में कराची में चाइनीज इंजीनियर्स लोगों को टारगेट किलिंग के तहत मारा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसके वजीर आजम का इस्लामाबाद में मौजूद होना अपने डेलीगेशन के साथ, उसकी अहमियत को समझें। हम कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क हैं, हमें तरक्की करने से इंशाअल्लाह कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हमारी तरक्की की राह में रुकावटें खड़े करने वालों को पहचानें। वो बहरूपीय भी हो सकते हैं, वो बैरूनी एजेंडे पर काम करने वाली शख्सियत भी हो सकते हैं, लेकिन ये जज हमने करना है, ये आइडेंटिफाई हमने करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। और मिसाल
उनके कामों से ली जा सकती है। मैं अपने मुंह से खुद कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे इस 2 साला गवर्नरशिप के इक़्तिदार में हर मुमकिन कोशिश की कि अवाम से इस गवर्नर हाउस का रिश्ता आसान बनाया जाए, आपको इस गवर्नर हाउस में वही इज्जत, वकार और मकाम दिया जा सके जो मुझे हासिल है। और इसी कोशिश में ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमने लिए, ले रहे हैं और लेते रहेंगे। और मैंने जैसे कहा कि हम सभी को मौका मिलेगा तो हम इस पाकिस्तान को बनाएंगे, इस शहर को बनाएंगे, इस सूबे को बनाएंगे। और हम सबका ये फर्ज भी है, हमें इस मुल्क का कर्ज अदा करना है, हक अदा करना है। ये कोई एहसान नहीं करेंगे हम। इस मुल्क ने हमें सब कुछ दिया है। सबसे चीज बड़ी हमारी पहचान, हमारा ये पाकिस्तान है। इस पहचान को हम नहीं बदल सकते। अगर इस पहचान के नाम पर कोई कलंक लग रहा है तो सबसे पहली जिम्मेदारी है हम उसको साफ करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, आए इस मुल्क के लिए जीते हैं कुछ साल। आए इस मुल्क को बनाने की खातिर, इसको तरक्की देने की खातिर, और आए एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे का मसीहा बनते हैं। अच्छी चीजें आप, सबसे बड़ा अहम किरदार अदा आप लोग कर सकते हैं। कोई काम ऐसा नहीं है जो आप ना करवा सकते हो। लेकिन आए तनकीद, ऐसी तनकीद जिससे फायदा हासिल हो, वो करके काम करवाएं। अपने हक के लिए खड़े हों, अपनी शहर के हकूक के लिए खड़े हों, तो सब चीजें हो सकती हैं। अगर ऐसे रास्ते पे खड़े हों जिसकी लाइन में लगकर भी कुछ हासिल ना हो, तो कितना ही बड़ा मजमा हो, फजूल का होगा। लेकिन चंद लोग ऐसी लाइन में खड़े हों और ऐसे काम करवा जाएं जो तारीख का हिस्सा बने, उसमें शामिल हों। मेरे दरवाजे खुले हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब मेरी टीम का हिस्सा बने और हम सब मिलकर, मैं आपकी टीम का हिस्सा बनूं और हम इस सूबे, इस शहर, इस पाकिस्तान को चमकाते हैं और एक दूसरे का साथ निभाते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। मेरे शेर वेर तो सारे सुना दिए हैं सभी ने, बचा कोई नहीं है। लेकिन चलें, अगर आपने ख्वाहिश की है तो मैं एक आध शेर सुनाने की कोशिश करता हूं। चलें। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। बहुत शुक्रिया ऑनरेबल गवर्नर सिंध, हिज एक्सीलेंसी मोहम्मद कामरान खान तिसोरी। सर, आपसे गुजारिश करूंगा कि कुछ सोवीनियर्स हैं। वैसे तो यहाँ पर आज सिविल सोसाइटी से बहुत से लोग मौजूद हैं, लेकिन चंद एक चीज़ा शख्सियात को हम देना चाहते हैं। जी हाँ जी, आज के जो हमारा चार्टर ऑफ कराची विजन 2030 है, सबके कोलैबोरेटिव पार्टनर्स हैं, जिनको हम यहाँ पर कुछ सोवीनियर्स देना चाहेंगे। आपके दस्ते मुबारक से गुजारिश है कि आगे की जानिब जाएं, और रिजवान जाफर भी साथ में। मैं क्विकली अनाउंसमेंट करता हूँ। सबसे पहले गुजारिश करूंगा बाबर अब्बासी साहब, CEO हुसैन मार्केटिंग एंड नेटवर्क, प्लीज आइए और अपना सोवीनियर गवर्नर साहब से रिसीव कीजिए। बाबर अब्बासी साहब, भरपूर तालियां होनी चाहिए प्लीज। गुजारिश करूंगा आतिफ इकबाल साहब से, थैंक यू। गुजारिश करूंगा आतिफ इकबाल साहब से, मेंबर बोर्ड ऑफ पार्टनर्स यूथ पार्लियामेंट एंड CEO हाईक्यू फार्मा से। तालियों की गुजारिश है प्लीज। गुजारिश करूंगा हमजा ताबानी साहब से, मेंबर बोर्ड ऑफ पैटर्न्स यूथ पार्लियामेंट, चेयरमैन ताबानी ग्रुप्स, प्लीज अपना सोवीनियर गवर्नर साहब से हासिल कीजिए। गुजारिश करूंगा खालिद जमील